Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to Forward Public School e-learning class 10. Subject is biology. This is part 4 of chapter 14, that is reproduction, and I am your teacher Runa. Okay students, now come to the topic fusion of gametes, and fusion of gametes is known as fertilization. कि जब हमारे पास मेल स्पर्म का यूनियन होता है विद द फीमेल ओवा या गैमीट, दिस इज नॉन एज फर्टिलाइजेशन. ठीक है, फर्टिलाइजेशन में हमारे पास जो स्ट्रक्चर बनता है आफ्टर द फ्यूजन ऑफ गैमीट्स, दैट इज नॉन एज जायगोट. अब हमारे पास फर्टिलाइजेशन की टू टाइप्स हैं, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन एंड इंटरनल फर्टिलाइजेशन. जब हमारे पास व्हेन द फर्टिलाइजेशन अकर इनसाइड द बॉडी ऑफ फीमेल, इट इज नॉन एज इंटरनल फर्टिलाइजेशन. इफ it occur outside the body of the female of the organism, it is known as external fertilization. Come to fertilization. Fertilization is a process in which the male and female gametes fuse to form what? Zygote. The zygote is the first cell of the new offspring. ठीक है, new offspring का ये पहला सेल होता है और फिर वो हमारे पास by the process of mitosis divide होता है to make the body of the organism, which divides through mitosis and develops into an embryo. ठीक है, zygote में जब हमारे पास mitotically divide होता है, so it form a structure which is known as embryo. The embryo through further developmental changes become a new individual. ठीक है, fertilization is an essential step of sexual reproduction. एक बहुत ही ज़रूरी स्टेप है sexual reproduction के लिए. It restores the diploid number of chromosomes इन द जायगोट. ठीक है, कि हमारे पास जो मेल गैमीट होता है वो भी हैप्लॉइड होता है और फीमेल भी हैप्लॉइड होते हैं. जब ये दोनों कंबाइन होते हैं सो इट मेक डिप्लॉइड जायगोट. इस तरह हमारे पास क्रोमोसोम नंबर जो होता है दोबारा से डिप्लॉइड हो जाता है. इन एनिमल फर्टिलाइजेशन में अकर आउटसाइड द बॉडीज ऑफ द फीमेल, और उसको क्या कहा जाता है? एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन. or inside the body of the female, and this type of fertilization is known as internal fertilization. Now external fertilization. ठीक है, external fertilization is a type of fertilization which takes place outside the body of the organism. External fertilization occur mostly in the aquatic environment. Aquatic mean water. वाटर लिविंग एनिमल्स में ज़्यादातर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होती है. बोथ द मेल एंड फीमेल एनिमल्स रिलीज देयर गैमीट्स इनटू देयर सराउंडिंग, यूजुअली वाटर. ठीक है, मेल और फीमेल जो है अपने गैमीट्स को वाटर में रिलीज करता है. फिर हमारे पास वाटर में ही आउटसाइड द बॉडी, वाटर में फ्यूजन ऑफ गैमीट्स टेक्स प्लेस आउटसाइड द बॉडी इन द वाटर, एंड द यंग ones also develop outside the mother's body. For external fertilization, both animals release gametes in great numbers because there are more chances of the loss of gametes. ठीक है, जब हमारे पास एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होती है तो उसमें एनिमल्स लार्ज अमाउंट में गैमीट्स को रिलीज करते हैं क्योंकि उसमें हमारे पास लॉस का जो चांस होता है वो ज़्यादा होता है. फिश एंड एम्फीबियंस आर एग्जाम्पल ऑफ एनिमल्स दैट रिप्रोड्यूस इन दिस वे. ठीक है, फिश हमारे पास वर्टिब्रेट्स हैं विच लिव इन वाटर, और एम्फीबियंस दे आर ऑल्सो वर्टिब्रेट्स. Amphibians are a group of those animals which live both on land and in water. You can say they live on land but they need water for their sexual reproduction. ठीक है, fish और amphibian जो है for example frog, they show external fertilization. यू कैन सी इन द डायग्राम कि मेल और फीमेल जो है अपने गैमीट्स को, फीमेल क्या प्रोड्यूस करती है? ओवा, और मेल क्या प्रोड्यूस करता है? स्पर्म. ठीक है, आउटसाइड द बॉडी उसको रिलीज करता है. फिर हमारे पास वाटर में ही उन दोनों की फर्टिलाइजेशन होती है, जायगोट बनता है, और फिर हमारे पास न्यू इंडिविजुअल इज डेवलप. ठीक है, सो आउटसाइड ऑफ द बॉडी ऑफ द फीमेल या ऑर्गेनिज्म. सो दिस इज नॉन एज एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन. Now come to the internal fertilization. ठीक है, fusion of gametes inside the body of female. Internal fertilization occurs in many land animals. For internal fertilization, the egg, which is known as ovum, of the female animal is not released out of the body. ठीक है, ज़्यादातर internal fertilization land animals में पाई जाती है और इसमें जो egg होता है वो female के body के अंदर ही रहता है, बाहर नहीं रिलीज होता. It stays in the reproductive duct of the female. The sperm of the male fertilizes the egg. ठीक है, जो मेल का sperm होता है वो egg को fertilize करता है. After internal fertilization, there are two ways for the development of the fertilized egg. ठीक है, हमारे पास जब fertilization होती है तो फिर fertilized egg की development दो तरीके से होती है. या तो हमारे पास animals egg को ले करते हैं, मतलब आउटसाइड द बॉडी हमारे पास उनकी डेवलपमेंट होती है इनसाइड द एग, या तो फिर हमारे पास कुछ एनिमल्स जो है वो दे गिव बर्थ टू द
यंग वंस, ठीक है। सम एनिमल्स फॉर एग्जांपल रिप्टाइल्स एंड बर्ड्स, ठीक है, रिप्टाइल्स और बर्ड्स में दीज आर द वर्टिब्रेट्स ले द फर्टिलाइज्ड एग्स, ठीक है। कुछ एनिमल जो है हमारे पास वो अंडे देते हैं। इन सच एनिमल्स द एग्स आर कवर्ड बाय हार्ड शेल फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द एम्ब्रियो, ठीक है। उनका एग जो होता है दैट इज कवर्ड बाय हार्ड शेल, ताकि वो एम्ब्रियो को प्रोटेक्ट कर सकें। फर्दर डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रियो टेक्स प्लेस इनसाइड द एग शेल, ठीक है। बाकी जो एम्ब्रियो की डेवलपमेंट है इनटू अ न्यू ऑर्गेनिज्म वो हमारे पास शेल के अंदर होती है, लेकिन अंडा जो होता है, एग जो होता है, वो होता है आउटसाइड द बॉडी ऑफ द फीमेल, ठीक है। इन सम एनिमल्स फॉर एग्जाम्पल मेजॉरिटी ऑफ द मैमल्स, ठीक है, ज़्यादातर मैमल्स में, मैमल्स हमारे पास ग्रुप ऑफ एनिमल्स हैं विच फीड देयर यंग वंस, ठीक है। उसमें क्या होता है कि द फर्टिलाइज्ड एग रिमेन्स इन द रिप्रोडक्टिव डक्ट ऑफ द फीमेल, ठीक है, कि फर्टिलाइज्ड एग जो होता है वो फीमेल के बॉडी के अंदर रहता है, रिप्रोडक्टिव डक्ट में रहता है। द डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रियो टेक्स प्लेस देयर, ठीक है, हमारे पास एम्ब्रियो की डेवलपमेंट उधर ही होती है, इनसाइड द बॉडी ऑफ फीमेल। इन दिस केस एक्स्ट्रा प्रोडक्शन इज प्रोवाइडेड टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो, ठीक है। इस केस में जब इंटरनल फर्टिलाइजेशन होती है तो एम्ब्रियो को जो है एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन प्रोवाइड की जाती है, ताकि एम्ब्रियो जो है वो प्रॉपर डेवलप हो सके इनटू अ न्यू ऑर्गेनिज्म। ओके स्टूडेंट्स, नाउ कम टू द रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ रैबिट। रैबिट का रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ेंगे। रैबिट बिलोंग्स टू द ग्रुप मेमेलिया ऑफ वर्टिब्रेट्स, कि रैबिट हमारे पास वर्टिब्रेट के ग्रुप मेमेलिया से बिलोंग करता है। द रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ रैबिट कंसिस्ट ऑफ नंबर फर्स्ट गोनेड्स, सेकंड एसोसिएटिव डक्ट्स एंड द थर्ड वन इज ग्लैंड्स, ठीक है। कि हमारे पास रैबिट का जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है इट इज़ कंसिस्टेड ऑफ गोनेड्स, एसोसिएटेड डक्ट्स एंड ग्लैंड्स। गोनेड्स आर ऑर्गन विच मेक गैमीट्स, ठीक है। गोनेड वो ऑर्गन है जिसमें गैमीट्स बनते हैं। गैमीट्स आर ऑल्सो नॉन एज सेक्स सेल। गोनेड ऑल्सो सिक्रीट हार्मोन्स, गोनेड जो है हमारे पास सेक्स हार्मोन भी सिक्रीट करता है। फ्रॉम गोनेड्स द गैमीट्स एंटर द एसोसिएटेड डक्ट्स, गोनेड से हमारे पास फिर गैमीट्स जो है वो एंटर होते हैं इनटू द एसोसिएटेड डक्ट्स। First come to the male reproductive system of the rabbit. In a male rabbit there is a pair of gonads which is known as testes, ठीक है। मेल गोनेड हमारे पास क्या कहलाती हैं? टेस्टिस हमारे पास मेल रेबिट में होती हैं। द गोनेड्स आर लोकेटेड इन अ सैक लाइक स्ट्रक्चर द स्क्रोटम विच लाइज आउटसाइड द बॉडी। अब हमारे पास ये जो टेस्टिस है, गोनेड्स हैं, ये किस में प्रेजेंट होती है, लोकेट करती हैं इन अ सैक विच लाइज आउटसाइड द बॉडी, जिस्म से बाहर लाई करती हैं, और वो सैक लाइक स्ट्रक्चर क्या कहलाता है? स्क्रोटम। ईच टेस्टिस सिंगुलर इज मेड ऑफ कॉइल ट्यूब्स कॉल्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, ठीक है। हर टेस्टी जो है इट इज़ मेड अप ऑफ कॉइल ट्यूब्स, ठीक है, कॉइल ट्यूब से बनी होती हैं, और वो ट्यूब क्या कहलाती हैं? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स टेक्स प्लेस इन द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। हमारे पास स्पर्म की जो फॉर्मेशन होती है, स्पर्म जो बनते हैं वो कहाँ पे बनते हैं? इन द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स विच आर कॉइल ट्यूब्यूल्स, ठीक है, जो कि हमारे पास टेस्टिस बनाते हैं। The associated ducts in the male reproductive system consist of 2 epididymis and 2 sperm ducts, ठीक है, which are known as vas deferens। Associated ducts जो है वो हमारे पास male reproductive system में कौन कौन से हैं? 2 epididymis और 2 sperm ducts, जिनको कहा जाता है vas deferens। Both sperm ducts which are also known as vas deferens हमारे पास join होते हैं with the urethra, मिले हुए होते हैं यूरिथ्रा के साथ, विच ट्रांसपोर्ट द स्पर्म्स आउटसाइड, जो कि यूरिथ्रा जो है फिर स्पर्म को बाहर जो है ट्रांसपोर्ट करता है, लेके जाता है। सम ग्लैंड्स ऑल्सो लिंक्ड विद द एसोसिएटेड डक्ट्स, ठीक है, कुछ ग्लैंड जो है वो भी हमारे पास एसोसिएटेड डक्ट के साथ लिंक होते हैं, मिले हुए होते हैं और उसके साथ काम करते हैं। दीज ग्लैंड्स एड सिक्रीशन टू द स्पर्म, ठीक है, ग्लैंड्स क्या सिक्रीट करते हैं? सिक्रीशन प्रोड्यूस करते हैं और फिर उसको स्पर्म में ऐड करते हैं। हमारे पास 3 ग्लैंड्स आर देयर इन द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ द फ्रॉग या इन मेल फ्रॉग। वो हमारे पास क्या है? सेमिनल वेसिकल्स, सेकंड ग्लैंड जो है प्रोस्टेट ग्लैंड्स, एंड थर्ड वन इज कॉपर्स ग्लैंड्स, ठीक है। The secretion of seminal vesicles has nutrients for the sperm. Seminal vesicle की secretion क्या provide करता है? sperm को food provide करता है, nutrients provide करता है। The secretion of prostate gland neutralizes the acidity, ठीक है, उसको neutral करता है क्योंकि sperm जो होते हैं they are acidic। तो prostate gland की जो secretion है वो acidity nature को neutralize करती है, neutral करती है। And the secretion of Cowper's glands lubricates the ducts. Cowper's gland की जो secretion है वो ducts को moist करती हैं। Lubricate mean moist।
You can see in the diagram, this is the structure which lies outside the body, which is known as scrotum. Inside the scrotum, testes are present. Testes are male gonad, ठीक है, which is made up of coil tube that is known as seminiferous tubules. Seminiferous tubules जो है हमारे पास, ये जो है आगे it is associated with the ducts, ठीक है, और वो हमारे पास कहलाती हैं वेस्ट डेफरेंस, ठीक है, एंड एपिडिडिमस, ठीक है। और फिर यहाँ से हमारे पास वेस्ट डेफरेंस जो है उसको लेके जाता है यूरिथ्रा तक, स्पर्म को, और यूरिथ्रा से फिर वो हमारे पास डक्ट के ज़रिए बाहर थ्रू पेनस जो है बाहर रिलीज़ होता है। अब यहाँ हमारे पास 3 ग्लैंड जो है वो भी लिंक्ड हैं, विच आर नोन एज प्रोस्टेट ग्लैंड, सेमिनल वेसिकल्स एंड काउपर्स ग्लैंड्स, ठीक है। ये हमारे पास अपने अपने सिक्रीशन को ऐड करके अपने डिफरेंट फंक्शन जो है वो फिर परफॉर्म करता है। Clear? Okay students, now come to the female reproductive system of the rabbit. In female rabbit there is a pair of gonads which are known as ovaries, ठीक है। female gonad क्या कहलाती है? ovaries, और वो कितनी होती हैं? pair mean 2, present in the abdominal cavity just ventral to the kidney, ठीक है, abdominal cavity में present होती है और किडनी के ventral side पे present होती हैं। in an ovary the egg is formed inside the special structure called the follicle, ठीक है। ओवरी के अंदर एक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम कहते हैं फॉलिकल, और फॉलिकल के अंदर हमारे पास एग्स आर प्रोड्यूस्ड। The associated ducts in the female reproductive system consist of 2 oviducts which are also known as fallopian tubes and a uterus, ठीक है। हमारे पास rabbit में 2 uteri are there. Each oviduct opens into a part of the uterus जो कि क्या कहलाता है? horn of the uterus. Each horn of the uterus open into a narrow portion which is called cervix. You can see clearly in the diagram, ठीक है, ये horn of the uterus है, ये एक uterus है, ये दूसरा है। ये दोनों जो है हमारे पास cervix में open होते हैं। ये दोनों cervix जो हैं these open into a single canal, ठीक है, ये single canal है, और this is known as birth canal and it is also known as vagina. So this is all about the female reproductive system of the rabbit. Now come to the need of population planning, ठीक है। population planning की ज़रूरत क्यों है? पाकिस्तान has one of the world's highest population growth rate, कि दुनिया में सबसे ज़्यादा population growth का रेट जो है पाकिस्तान में almost है। According to the population census conducted in 2017, Pakistan's population is nearly 208 million, ठीक है। पाकिस्तान में जब 2017 में मरदमशुमारी की गई तो उसके मुताबिक पाकिस्तान की पॉपुलेशन 208 मिलियन के करीब थी। द पॉपुलेशन ऑफ खैबर पख्तूनख्वा इज़ अबाउट 30,523,371 पाकिस्तान और पख्तूनख्वा की हमारे पास टोटल जो पॉपुलेशन है वो अकॉर्डिंग टू 2017 पॉपुलेशन सेंसस वो इतनी है। पाकिस्तान एवरेज एनुअल ग्रोथ रेट इज़ 2.5% वाइल द एवरेज एनुअल रेट इन खैबर पख्तूनख्वा इज़ 2.89%, ठीक है। पाकिस्तान में जो सालाना रेट है पॉपुलेशन का वो 2.54% है और खैबर पख्तूनख्वा में 2.89% है, जो कि बहुत ही ज़्यादा है। एट द करेंट ग्रोथ रेट ऑफ अबाउट 2.4% एनुअली, अगर हम इस बेस पे ग्रोथ रेट को देखें सो पाकिस्तान पॉपुलेशन विल एक्सीड 280 मिलियंस बाय 2020। अगर इसी रेट से एनुअली जो है हमारे पास पॉपुलेशन होती रही तो पाकिस्तान की पॉपुलेशन 2020 तक 280 मिलियन से ज़्यादा हो सकती है। अब हमारे पास क्या है नीड पॉपुलेशन प्लानिंग की, इसकी ज़रूरत क्यों है पॉपुलेशन प्लानिंग की? रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ पुट्स ग्रेट प्रेशर ऑन द एग्रीकल्चर लैंड, ठीक है। अगर हमारे पास आबादी ज़्यादा होगी तो डेफिनेटली एग्रीकल्चर लैंड पे प्रेशर जो है वो पुट करेगी ताकि उसको खुराक जो है वो प्रॉपर प्रोवाइड किया जा सके एंड हिंडर द प्रॉस्पेक्ट्स फ्रॉम इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट, ठीक है। और इस तरह हमारे पास सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट में रुकावट का बायस बन सकती है रैपिड ग्रोथ पॉपुलेशन। वन ऑफ द मैनिफेस्टेशन ऑफ पावर्टी इज़ द ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन बियॉन्ड अवेलेबल रिसोर्सेज। हमारी जो गुर्बत की एक वजह ये भी है कि हमारी जो पॉपुलेशन है वो अवेलेबल सोर्सेज से बहुत ज़्यादा है, उसको क्रॉस कर चुकी है। ऑल्दो द पैटर्न ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ एंड इनकम इज़ ऑल्सो अ की डिटर्मिनेंट ऑफ द पावर्टी, ठीक है। अगर जो हमारे पास वेल्थ दौलत जो है और इनकम जो है उसकी डिस्ट्रीब्यूशन डिफरेंट है तो इसकी वजह से भी गुर्बत है, लेकिन ज़्यादातर गुर्बत जो है वो हमारे पास बहुत ज़्यादा रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ की वजह से है।
In underdeveloped or developed countries, a growing population required that a job opportunity and some stable source of income is made available. ठीक है कि हमारे पास जो अंडर डेवलप्ड या डेवलप्ड कंट्रीज़ है, डेवलपिंग कंट्रीज जो डेवलप हो रही है, अ ग्रोइंग पॉपुलेशन रिक्वायर्ड, पॉपुलेशन ज़्यादा हो रही है तो उसके लिए भी एक ऐसी जॉब अपॉर्चुनिटी चाहिए और कुछ ऐसा सोर्स ऑफ इनकम चाहिए जो उसके लिए अवेलेबल हो सके. प्रोड्यूसिंग टू मैनी चिल्ड्रंस ऑफन प्लेसेस पुअर हाउस होल्ड्स अंडर स्ट्रेस ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ रिसोर्सेज. ठीक है, बहुत ज़्यादा बच्चे पैदा करने से आपको पता है कि हमारे पास जो मदर है उस पर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में जा सकती है, उस पर प्रेशर पड़ सकता है बिकॉज ऑफ शॉर्टेज ऑफ रिसोर्सेज, क्योंकि उनके पास इतनी रिसोर्सेज नहीं होती, उसकी कमी होती है. चिल्ड्रन ग्रो अप मेल नरिश्ड एंड ऑफन विदाउट एक्सेस टू इफेक्टिव एजुकेशन एंड हेल्थ केयर. ठीक है, इस तरह जिनके बच्चे ज़्यादा होते हैं वो बड़े तो हो जाते हैं बट मेल नरिश्ड का क्या मतलब है कि उनमें डिफिशेंसी ऑफ डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स, विटामिन्स या फूड एनर्जी कंपोनेंट्स की डिफिशेंसी हो सकती है और उनकी प्रॉपर एजुकेशन और हेल्थ केयर तक रसाई जो है वो भी फिर मुमकिन नहीं है. उनके प्रॉपर उस एजुकेशन पॉसिबल नहीं हो सकती और ना ही उनकी हेल्थ प्रॉपर हो सकती है. पाकिस्तान हैज़ बीन एड्रेसिंग द ओवर पॉपुलेशन इशू इन इट्स प्लान्स सिंस 1960 से जो है पाकिस्तान जो है ओवर पॉपुलेशन के इशू को जो है बार बार जो है वो एड्रेस कर रहा है. By the early 1990s, lowering the population growth rate had become permanent feature of Pakistan's 5 years plans. ठीक है, the federal and provincial government have been taking steps to educate the people about the hazards of overpopulation. ठीक है, हमारे जो वफाकी और सूबाई गवर्नमेंट है वो भी हमारे पास ऐसे स्टेप ले रहे हैं ताकि वो लोगों को एजुकेट कर सकें कि हमारे पास ओवर पॉपुलेशन, हद से ज़्यादा पॉपुलेशन का इंक्रीज़ होना, कि उसके हमारे पास क्या मुश्किलात हैं, उनके क्या क्या नुकसानात हैं. तो ये हमारे पास वफाकी और सूबाई हुकूमत जो है इनके लिए उन्होंने डिफरेंट स्टेप्स लिए हैं. We need to accept the fact that population planning has become a compelling need. ठीक है, we need, हमें ज़रूरत है कि हम एक्सेप्ट करें उस हकीकत को कि पॉपुलेशन प्लानिंग जो है वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी ज़रूरत बन गई है, नेसेसरी ज़रूरत बन गई है, विच सिंपली कैन नॉट बी इग्नोर्ड एनी लॉन्गर, जिसको हम फर्दर जो है इससे इनकार नहीं कर सकते. इट इंक्लूड्स, इसमें क्या क्या शामिल है, एन इफेक्टिव फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम. ठीक है, फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम इसमें शामिल है. चेंजिंग सोशल एटीट्यूड्स, लोगों का जो है सोशल जो बिहेवियर है वो उसको चेंज करना, तब्दील करना. एंड इम्प्रूविंग द स्टेटस ऑफ वेमेन. ठीक है, और इसके अलावा ख़वातीन के स्टेटस को बेहतर करना इन सब में शामिल है फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम्स में. इट इज़ एसेंशियल टू रेज द लिविंग स्टैंडर्ड. ठीक है, ये ज़रूरी है ताकि हम जो है मयार ज़िंदगी को अच्छा कर सकें एंड एवॉइड और रोक सकें इंक्रीजिंग द सीरियस प्रॉब्लम ऑफ रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ. रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है उसको एवॉइड कर सकें. Okay students, now come to the last topic of this chapter, sexually transmitted diseases. Sexually transmitted diseases are those which are transmitted through sexual activity. ठीक है, sexually transmitted diseases, STDs, are also known as sexually transmitted infections, STIs. ठीक है, are infections acquired through sexual activity with infected people. ठीक है, अगर हम infected people के साथ sexual activity करें तो इससे ये डिजीज़ेज जो है सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ेज आ जाती है हेल्दी लोगों में. दिस ग्रुप ऑफ डिजीज़ेज इंक्लूड मैनी बैक्टीरियल एंड वायरल इन्फेक्शंस. इस ग्रुप में हमारे पास सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ेज में वायरल भी हो सकती है और बैक्टीरियल भी हो सकती है. एक्वायर्ड इम्यून डिफिशिएंसी सिंड्रोम, जिसको हम यूजुअली क्या कहते हैं, एड्स, इज़ वन ऑफ द मोस्ट सिवियर एंड फैटल सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़. ठीक है, फैटल मीन डेथ कॉजिंग. ठीक है, ये ऐसी सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है विच कॉज डेथ of the people. ठीक है, AIDS. What is AIDS? AIDS is a viral infection caused by a human immunodeficiency virus. ठीक है, वायरल डिजीज़ है, वायरस की वजह से होती है और उस वायरस का क्या नाम है, HIV, human immunodeficiency virus. When a person is infected with HIV, the virus attack the white blood cells and destroy them. ठीक है, जब HIV वायरस अटैक करता है पर्सन पे तो वाइट ब्लड सेल्स को वो अटैक करके उसको ख़त्म कर लेता है. और वाइट ब्लड सेल जो है दे मेक द इम्यून सिस्टम इन आवर बॉडी विच प्रोवाइड डिफेंस सिस्टम अगेंस्ट द डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म. वाइट ब्लड सेल्स आर स्पेशलाइज्ड सेल्स ऑफ आवर बॉडी विच किल द पैथोजेंस. व्हाट आर पैथोजेंस? डिजीज कॉजिंग जर्म्स या
एजेंट्स दैट एंटर द ब्लड, ठीक है। वाइट ब्लड सेल्स हमारे पास ऐसे सेल्स हैं जो कि पैथोजेंस को ख़त्म करती हैं, वो पैथोजन जो हमारे ब्लड में अंदर आती है या उसके अंदर एंटर होती है। व्हेन HIV डिस्ट्रॉयज वाइट ब्लड सेल्स द मेन डिफेंस सिस्टम ऑफ आवर बॉडी इज़ वीकन, ठीक है। जब HIV हमारे वाइट ब्लड सेल्स को ख़त्म कर लेता है तो हमारा इम्यून सिस्टम जो है, डिफेंस सिस्टम बिकम वीकन, कमज़ोर हो जाता है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन कि हाउ दिस वायरस can be transmitted from infected to healthy one. HIV can pass from an infected person to a healthy person through फर्स्ट क्या है, बॉडी फ्लूइड एज अ रिजल्ट ऑफ एंगेजिंग इन सेक्शुअल एक्टिविटी, ठीक है। मेटिंग के दौरान जो हमारे पास फ्लूइड होता है उसके ज़रिए ये ट्रांसफ़र हो सकता है। HIV कैन बी ट्रांसमिटेड थ्रू द यूज़ ऑफ इन्फेक्टेड नीडल्स, इन्फेक्टेड नीडल्स के इस्तेमाल से हेल्दी लोगों में ट्रांसमिट हो सकता है। और ट्रांसफ्यूजन ऑफ द इन्फेक्टेड ब्लड, अगर हम ब्लड इन्फेक्टेड पर्सनस का डोनेट करें तो उसको भी हो सकता है। देयर इज़ नो क्योर फॉर HIV और एड्स, HIV या एड्स का कोई इलाज नहीं है। द मेडिकेशन यूजुअली इंक्लूड एंटी रेट्रोवायरल ड्रग्स दैट आर टेकन टू हिंडर द ग्रोथ ऑफ HIV। इसकी कोई मेडिकेशन जो है, क्योर जो है अभी तक अवेलेबल नहीं है, लेकिन वो मेडिकेशन जो हम इसके अगेंस्ट यूज़ करते हैं, एंटी रेट्रोवायरल ड्रग्स, वो सिर्फ HIV की ग्रोथ को स्टॉप करती हैं, छुपाती हैं, बाकी इसकी प्रॉपर जो ट्रीटमेंट है वो अवेलेबल नहीं है। अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट नेशनल HIV एस्टिमेट्स देयर आर अप्रोक्सीमेटली 97,400 केसेस ऑफ HIV और एड्स इन पाकिस्तान, ठीक है। कि लेटेस्ट जो नेशनल HIV एस्टिमेट है उसके अकॉर्डिंग पाकिस्तान में इतने HIV के पेशेंट हैं। हाउ एवर अकॉर्डिंग टू UNAIDS 2015 रिपोर्ट इन पाकिस्तान एड्स इज़ मोर कॉमन इन द पीपल हु इंजेक्ट्स ड्रग, ठीक है। कि पाकिस्तान में एड्स किसकी वजह से ज़्यादा है, जो ड्रग्स इंजेक्ट करते हैं, मंशियात वगैरह यूज़ करते हैं, उसमें हमारे पास HIV या एड्स सबसे ज़्यादा है पाकिस्तान में। The National AIDS Control Programs and its provisional units are currently implementing a comprehensive program throughout the country to halt the HIV epidemic, ठीक है। कि नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम और प्रोवेंशल यूनिट्स जो हैं उन्होंने ऐसा वो जामे और मुकम्मल प्रोग्राम जो है वो पूरे मुल्क में लागू कर रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं, ताकि HIV वबा से जो है उसको स्टॉप कर सकें। दे एजुकेट कॉमन पीपल एज वेल एज पार्लियामेंटेरियंस, मीडिया पर्सनल, एजुकेशनिस्ट एंड रिलीजियस लीडर्स, ठीक है। वो आम लोगों को भी एजुकेट कर रहे हैं, अवेयरनेस प्रोवाइड कर रहे हैं। इसके अलावा पार्लियामेंटेरियंस को भी, मीडिया पर्सनल, ठीक है, एजुकेशनिस्ट जिनका ताल्लुक हु आर वर्किंग विद द एजुकेशन, ठीक है, उनको, और मजहबी लीडर्स को भी एजुकेट कर रहे हैं एड्स के बारे में और उनमें अवेयरनेस जो है वो पैदा कर रहे हैं। दे ऑल्सो ऑर्गेनाइज्ड इवेंट्स लाइक इन द वर्ल्ड एड्स डे टू रेज अवेयरनेस अबाउट द इशू, ठीक है। वो ऐसे प्रोग्राम जो है, इवेंट्स भी ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, अरेंज कर रहे हैं वर्ल्ड एड्स डे पे, ताकि लोगों में इस इशू के बारे में उनमें अवेयरनेस जो है उसको उजागर कर सके, पैदा कर सकें। रोल ऑफ नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन NGOs, ठीक है। ये वो ऑर्गेनाइजेशन होती हैं विच आर नॉट रनिंग by the government, ठीक है। These are running by aids of developed countries. Many NGOs serve to coordinate HIV AIDS prevention and control activities in all the provinces of Pakistan, ठीक है। पूरे पाकिस्तान के साथ कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं एड्स प्रिवेंशन में और उसको कंट्रोल करने के प्रोग्राम में। All the NGOs are active in educating people and supporting HIV AIDS patient, ठीक है। अगरचे NGOs वाले जो है वो बहुत एक्टिव है लोगों को एजुकेट करने में और HIV पेशेंट को सपोर्ट करने में। इट इज़ बिलीव दैट दे आर रीचिंग लेस दैन 5% ऑफ द वल्नरेबल पॉपुलेशन। ये ख्याल किया जाता है कि सिर्फ 5% तक इलाके तक इनकी रसाई है, जो अफेक्टेड पॉपुलेशन है 5% तक उनकी रसाई है, बाकी तक उनकी रसाई जो है वो अभी तक पॉसिबल नहीं है। Okay students, this is the end of the chapter 14, that is reproduction. Hope you have understood all the topics very well. अपना बहुत ख्याल रखें. Thank you and Allah Hafiz.